Hello everyone. Today we will be discussing about a maths topic, an important topic of class 9, that is circumference of a circle. So the chapter name is circumference. Circumference of circle. Okay. So this is a circle. Everyone is able to see that? This is a circle, and let this is the point A and this is the point B of a circle. We are moving this circle. Let this is a wheel, कोई कार की और ट्रक की व्हील ले लो. ये एक व्हील है. इसको अब हम ऐसे पुश करेंगे ताकि ये ए पॉइंट इधर आ जाए, यानी कि ऐसे. ये व्हील जब इधर आया तो हम क्या देख पाए, ये यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, मतलब ये इस व्हील को हम एक बार धक्का दिया. सो द डिस्टेंस इट कवर्स इट इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. और हम अलग से भी बोल सकते हैं कि ये जो बाहर का पोर्शन है इसका लेंथ, अगर हम एक तार को ले, अगर हम कंसिडर करें कि एक तार है हमारे पास, इस ये मानो ये एक तार है और इसको हम मोड़ के सर्कल बना दें, तो क्या होगा? जो सर्कल का लेंथ है वही तार का लेंथ होगा, जो तार का लेंथ है वही सर्कल का लेंथ होगा, तो वही. सो अगर हम इससे एक सर्कल बनाए, मानो ये एक तार है, इसको मोड़ के ऐसे मोड़ के हम ये सर्कल बनाए, तो इसका लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसका सर्कमफेरेंस भी क्या होगा? 2a होगा, क्योंकि ये इस तारीख तो मैंने बनाया है. So this is the concept. This is the basic concept of what is circumference. Okay. Now I think this is clear to everyone. If any doubt, you can ask in the comment section. I will always answer that. So this is a circle. This is the diameter, and this is the radius. This from center to the periphery. This is the radius. R यानी कि एक पिज्जा स्लाइस. ये लग रहा है ना एक पिज्जा स्लाइस. So this distance is radius and this full distance is diameter. So this is R and this is R. If we say that diameter, then it is 2R. This R plus this R, and the radius radius. The radius is R. R unit. ये यूनिट होगा, इसके बाद यूनिट होगा. सो दिस इज द होल स्टोरी. नाउ एंड वी ऑल नो अबाउट पाई. व्हाट इज पाई? बेसिकली I want to share with you the knowledge that if we take this size of a circle, then a big circle, then a medium circle, हम लोग एक अगर एग्जामिन करें कि इसका जो ये है परिधि, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस, इसका जो लेंथ है और इस डायमीटर का लेंथ, इसका सर्कमफेरेंस का लेंथ, इसका डायमीटर का लेंथ बाई करके, मतलब रेशियो, इसका सर्कमफेरेंस का लेंथ, इसका डायमीटर का लेंथ, तो क्या होगा? कुछ साइंटिस्ट ने ये प्रूफ करने की ट्राई किया जब, तब सर्कमफेरेंस का लेंथ बाय डायमीटर, वो साइंटिस्ट देखा क्या, साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रूफ किया है कि जिस साइज की भी तुम सर्कल ले लो, या जो सर्कल ले लो, उसका सर्कमफेरेंस का लेंथ बाय इसका डायमीटर जो है, in every cases it is constant. What is the value? The value is 22/7. That is, we call that pi. So this is the concept of pi. You can say that circumference of circle by diameter of circle equal to pi. Okay. अब हमको लाना है कि what is the circumference of a circle, and previously we know that if we consider this is radius, so this is the diameter r, so r plus r, 2r is the diameter. Previously we
शॉर्ट में लिखती हूँ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर क्या है 2r, सो वी कैन से दैट इट इज 2r. सो हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो है 2 pi r. So this is the formula we used in the mathematics. So here we can easily, with that formula, we can evaluate the value if we know the value of the r, radius of a circle. So I'm giving you a question on that. Question number 1. So here is our first question, that if a circle has a radius of 14 cm, then what is the circumference? We know the formula, that 2 pi r. Here 2 into pi, there may be यहाँ पे दिया हो सकता है पाई का वैल्यू, और वी नो दैट 22/7 into r. r क्या दिया हुआ है यहाँ पे 14 सेमी into 14 सेमी, so 7 2 4 88 सेमी. So what is the answer of that question? 88 सेमी. Understand? So we will next learn about semicircle. So what is semicircle? आप एक सर्कल को अगर बीच से काट दो तो हम एक सेमी सर्कल आ जाता है. Like this is a circle and you divide it into two parts. Like this is the semicircle. If the circle has the circumference 2 pi r, then what will be the circumference of this semicircle? Sorry, the 2 pi r by r. So this part, the length of this part is pi r, and we know this is the diameter, this is it. So we know that if this is r radius and this is r, so the diameter is 2r. So for a semicircle, if it is asked that what is the circumference of a semicircle, matlab this length and this length, so here we are pi r plus 2r. Please take a note of it. Make it a note that semicircle's circumference is 2r plus pi r. So we will be, so यहाँ से एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं. Question number 2. What is the circumference of a semicircle disc of radius 7? What is the circumference of a semicircle disc of radius 7 cm? So if it is a semicircle, this is a semicircle, this is pi r and this is 2r, and here it is told that the radius is 7 cm, so it is very easy. Pi r, the answer is pi r plus 2r. Pi matlab 22/7 into 7 plus 2 into 7 सेम. ये कट गया, 22 प्लस 14 6 3 यानी कि 36 सेमी. So the circumference of a semicircle is 36 cm. Understand? Question number 3. There is a structure, there is a figure like that, and here it is asked that what is the circumference of that field. This is the field. So it is told that it is 30 semi. It is 30 semi, and the length of that is 14 semi, and it is also 14 semi. And this is a semicircle, and this is also a semicircle. What is the circumference? What is the circumference of the field? If I give it, what is the circumference of the field?
Now it is it looking difficult? No, it's not difficult. It's 37. Oh, we got that, and we leave that this and this portion. अभी हमने किया, बहुत इजी है, पर एक बात ध्यान रखना है कि हम इसका जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, इस लाइन को हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ इस बाहर की पार्ट को लेंगे. सो दिस इज 7 सेमी. इफ वी take that the diameter is 14 cm and the radius is the diameter 2r. If r is the radius, 2r equal to 14 cm, then r equal to 7 cm, and we are only taking this part. मतलब एक सर्कल का अगर सर्कमफेरेंस 2 पाई r है, तो एक सेमी सर्कल का क्या है, पाई r, 2 पाई r by 2, यानी कि पाई r. सो पाई r मतलब 27 by 7, 22 सेमी. मतलब यहाँ पर 22 सेमी, यहाँ पर 22 सेमी. सो यहाँ पे कहा है कि द व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द फीट. मतलब हम ये लेंगे, ये पार्ट लेंगे, ये पार्ट लेंगे और ये पार्ट लेंगे. सो हियर इज द सर्कमफेरेंस. आंसर विल बी 30 सेमी प्लस 30 प्लस 22 प्लस 22. So what is the answer? 14104 cm. So what is the circumference of the foot? 104 cm. That's it. So easy. अब हम दोबारा से उस टॉपिक को थोड़ा समझ लेंगे कि अगर एक सर्कल को, अगर एक व्हील को हम मान लेते हैं, ये एक व्हील है, अगर एक व्हील को हम एक बार धक्का देते हैं, मतलब अगर एक व्हील एक बार घूमता है, इसको अगर हम इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, एक बार घूमने से एक व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है. सो दिस लेंथ इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब 2 pi r. दिस इज इट इंटरेस्टिंग. अगर एक व्हील को अब एक बार घुमाओ तो वो 2 pi r डिस्टेंस कवर करता है. सो एज सिंपल एज दैट. अगर 2 बार घुमाओ तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 into 2 pi r, 2 into the circumference of the circle. अगर आप एक व्हील को एक बार घुमाओ वन टाइम, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 pi r. मतलब द सर्कमफेरेंस, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. अगर 2 टाइम्स उसको अब घुमाओ तो कितना करेगा, 2 into 2 pi r. So this is the concept, and we will solve a problem which is based on this concept. So let's go. Here is our fourth question. This is very easy and very interesting. So this is our question number 4. So here is our fourth question. Question से ही पूरा बोर्ड भर गया. So what is it saying? That a engine has 2 wheels, a front wheel and a back wheel. The front wheel has a diameter of 70 cm and the back wheel has the diameter of 168 cm. The front wheel rounds 60 times to attain a distance. How many times the back wheel rounds to attain the same distance? We'll solve the question. This is very easy and we have to rub it. So the front wheel is the diameter 70 cm, or the back wheel has the diameter 168 cm. So 2r equal to 70 cm. Now r equal to 35 cm. This is the diameter. And we learned that एक व्हील अगर एक बार धक्का दिया, एक बार घुमा, तो वो उसका सर्कमफेरेंस का इक्वल डिस्टेंस जाता है. तो इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 pi r. 2 pi r यानी कि 2 into 35, 220 सेंटीमीटर. तो एक बार धक्का देने से ये कितना सेमी जाता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है. और क्वेश्चन में कहा था कि वो 600 टाइम्स वो घूमता है, तो वो कितना डिस्टेंस जाएगा.
एक बार घूमने से अगर वो इतना डिस्टेंस जाता है तो 600 टाइम घूमने से वो 600 इंटू 220 इतना सेमी जाएगा. ओके, दिस इज द डिस्टेंस and this is the same distance that the back wheel have to cover and the question is in how many rounds. So यहाँ पे क्या बोला है कि जो बैक व्हील है उसको कितना राउंड्स जाना पड़ेगा ये डिस्टेंस अटेंड करने के लिए. सो मैं ये मिटा देती हूँ. तो इसका 2r डायमीटर इक्वल टू इसका रेडियस इक्वल टू हो गया 168/2 84 सेमी. ओके, सो इसका 2πr इसका सर्कमफ्रेंस 2πr इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू r. सो इतना डिस्टेंस ये पूरा व्हील ये बड़ा वाला व्हील है और इसका सर्कमफ्रेंस 2πr यानी कि ये है इस सेंटीमीटर. ओके, सो इतना डिस्टेंस ये कवर करता है जब कितने बार वो व्हील घूमता है. एक बार, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस है. अगर हम 12 यानी कि 44 इंटू 12 सेमी वो जाता है जब वो एक बार घूमता है. मैं ये मिटा देती हूँ और ये रहने देती हूँ. सो इतना सेमी जाएगा तो वो कितना बार घूमेगा 600 इंटू 200 इंटू कितना टाइम घूमेगा 600 इंटू 220/44 इंटू 12 ना टाइम्स. हम ये मिटा देते हैं और ये भी. आप लोग सब नोट कर रहे हो ना. सो यहाँ पे 22 से यानी कि 2 दैट इज आंसर. जो पीछे वाला व्हील था जो बैक वाला व्हील था उसको कितना टाइम्स घूमना पड़ेगा 250 टाइम्स. दैट इज आवर आंसर. एज सिंपल एज दैट. सो अब ये नोट कर लो जो है क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. So here is our fifth question. That is, we have a path equal width all around our circular path. The outer perimeter is 500 meter and the inner perimeter is 478 meter. Then what is the width of the path? So that is very easy. Here हम ये मिटा देते हैं. The picture is like that is the part, that is the width and we are considering that is r and this is the capital R. Okay, and this is वो हमें पता करना है कि क्या है. तो वहाँ पे क्या हुआ है कि 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू 500 यानी कि बाहर का जो सर्कमफ्रेंस है पेरीमीटर है वो 500 है और अंदर का जो पेरीमीटर है वो है 478. Now if that is 1 and that is 2 we subtract number 1 equation by number 2, so we will find r minus r equal to 500 minus 478 यानी कि 2 पाई r minus r equal to 22 and r minus smaller equal to 3.5 meter. So this is if we subtract the capital R small r from if we subtract small r from the capital R we will find the width of the path, that is 3.5 meter. That is the answer. Okay, so moving forward to the next question. Okay, let's go. So here is our sixth question. The question is the ratio of time it takes a cyclist to complete round of outer and inner edges of a circular path is 20:19. If the path is 5 meter wide, this path is 5 meter wide.
देन राइट द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल, मतलब ये इनर सर्कल का डायमीटर कितना है ये पूछा है। तो हमने मान लिया कि इनर सर्कल का जो रेडियस है r एंड इनर सर्कल का रेडियस r एंड आउटर सर्कल का रेडियस r प्लस 5, हमें ये मिल गया। यहाँ पे टाइम का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम का रेशियो दिया हुआ है। आउटर पार्ट को घूमने में इतना टाइम लगता है और इनर पार्ट को घूमने में इतना टाइम लगता है। यहाँ पे हम लोगों को एक दूसरा फॉर्मूला जो बहुत काम आएगा वो है डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब डिस्टेंस के साथ टाइम का क्या रिलेशन है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि उस साइक्लिस्ट का जो वेलोसिटी था वो पहले में और दूसरे में दोनों में कांस्टेंट था। सो ये हम मिटा देते हैं डिस्टेंस। सो ये क्या हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हम x मान लिया। सो डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू कांस्टेंट। सो डिस्टेंस बाय टाइम का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब इसका डिस्टेंस बाय डिस्टेंस इक्वल, मतलब मैं समझाती हूँ, मतलब डिस्टेंस d1 बाय d2 इक्वल टू d1 बाय d2। जो यहाँ पे है रेशियो वो हम यहाँ पे बैठा देंगे और d1 बाय d2 ये हम निकालेंगे। सो हम ये मिटा देते हैं d1। सो व्हाट इज द d1? d1 द सर्कमफेरेंस ऑफ द बिगर सर्कल, मतलब बिगर जो बाहर का जो आउटर पार्ट, सो उसका है 2 पाई स्मॉलर प्लस 5 और d2 है 2 पाई r, इसका रेडियस। डिस्टेंस का रेशियो हमारे पास आ गया। इस बार हम वो जो टाइम का रेशियो है वो यहाँ पे बिठा देंगे 20 बाई 90। सॉल्व करने से ये कट जाएगा और हमें मिलेगा r इक्वल टू 95 मीटर। और हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल। हम लोगों ने ये माना था ना कि रेडियस r है तो डायमीटर कितना होगा 2r, यानी कि 2 into 95। सो द आंसर इज 190 meter. This is the answer. So here it is. That is it for today's class. I hope you enjoyed the session and I will be back with another session very soon. Till then, keep studying.